السلام علیکم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر رسول ہم نے بھیجے سب کی طرف یہ وحی کی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا عمل برباد ہو جائے گا، تمہارا سارا نیک کام نیک عمل برباد ہو جائے گا اور تم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 65۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا فرما رہے؟ سوچیے آپ، پیغمبروں کو بول رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بول رہے اور پچھلے پیغمبر کو بھی وہی کیے تھے، بتائے تھے اللہ نے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا نیک عمل برباد ہو جائے گا اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے پیغمبروں کو بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا پہلے کے ساتھ۔ سورہ زمر آیت 65 نمبر کھول کے دیکھیے آپ، پتہ چلے گا آپ کو۔ وارننگ ہے، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، نیک عمل برباد ہو جائے گا۔ نیک عمل کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، نفل، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا، مدد کرنا، سارا نیک عمل برباد ہو جائے گا اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی جہنم میں چلے جاؤ۔ کتنی بڑی تنبیہ ہے پیغمبروں کو کتنی بڑی تنبیہ ہے، وارننگ ہے، سمجھا آپ؟ اگر تم شرک کرو گے تو سارا عمل برباد۔ میں بار بار ہر بیان میں بتایا نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ضائع ہو جائے گا اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے، آیت کا انکار کریں گے، گڑی ہوئی حدیث کو مان لیں گے، بات کو گڑی ہوئی مانیں گے تو اللہ کی بات سچی بات رد ہو جاتی ہے۔ اس کو کفر بولتے، کافر۔ کفر کیے تو، انکار کیے تو کافر، انکار کرنے والا، کفر کافر سب ایک ہی بات۔ ہمارا ذہن غلط بٹھایا گیا، اس لیے آپ لوگ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم ایمان والے نمازی لوگ، دیندار لوگ، مسلمان لوگ کہ ہم کافر تھوڑی۔ یہ ذہن بنایا گیا عالم مدرسوں میں، ایسا نہیں ہے، سمجھے آپ؟ نبی پیغمبر لوگ کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ آپ سوچئے، نماز روزہ نہیں کرتے تھے کیا پیغمبر لوگ؟ کرتے تھے نا۔ پھر بھی اللہ بولا اگر تم شرک کریں گے تو تمہارا سارا نیک عمل برباد ہو جائے گا۔ آپ لوگ کو بار بار بتا رہا ہوں، نماز روزہ حج زکوٰۃ جو آپ چار کو سمجھ لیے نا، بس یہ کرو جنت ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کرنے کے بعد اللہ کی کوئی بھی بات کو رد نہیں کرنا۔ رد کرنے کا مطلب آپ مجھ سے تھوڑی رد کرتے، آپ تو بولتے ہم قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں، عمل سے رد کرتے ہیں آپ، عمل۔ اللہ بولا سود حرام ہے، لینا دینا، سائن کرنا، گواہ بننا، سود حرام ہے، لینا دینا، سمجھا؟ حرام ہے تو آپ اللہ حرام بول رہا ہے، اب اللہ کی بات، ہاں حرام تو ہے، مجبوری بولتے، مجبوری اس کو نہیں بولا اللہ نے قرآن میں، بولا موت آ جائے تب مجبوری میں کچھ حرام کھا ہے، پوچھو بھی تھوڑا، موت آ جائے تو خالی ایک ہی چیز کا ہے، موت۔ کس کو موت آ رہی ہے؟ جا کے لون لے رہے، کس کو موت آ رہی ہے؟ موت تھوڑی آ رہی ہے، عیش کرنے کے لیے، لگژری لائف جینے کے لیے لون لیتے، پڑھنے لکھنے دنیا بنانے کے لیے لون لیتے، بزنس بڑھانے کے لیے لون لیتے۔ کرائے پہ ہندو بھی رہتا 50 سال سے، کرائے پہ رہتا کہ نہیں ہندو جو قرآن پہ اللہ پہ ایمان نہیں، کرسچن کرائے پہ 20 سال سے رہتے، نہیں لیتے، نہیں مطلب لون لے سکتے وہ لوگ تھوڑی ہے، لیکن وہ لوگ تو رہ رہے نا کرائے پہ، تو اللہ ایمان والے کو بولے گا تم بھی کرائے پہ رہ سکتے 10-20 سال، دنیا تو عرضی تھی، چند روزہ رہ سکتے۔ دیکھو وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ تو قرآن اور اللہ کو ہی نہیں مانتا، وہ بھی تو اتنے سال تک کرائے پہ رہے گا، تم بھی رہنا تھا، چند رہنا ہے نا دنیا میں، سفر میں ہو تم، نبی نے بولے ایسے رہو دنیا جیسے تم مسافر ہو، بولا نا، تو ایسے کہاں رہے؟ مجبوری ہے بول کر، بس مجبوری کی اللہ کے چلنے والی تھوڑی، عالم مفتی کا آپ کو دیا گیا خوش کرنے کے لیے، بولے نا اللہ نے کہ خوش نبی اگر کر دیتے تھوڑا ملاوٹ کر کے تو ہم ان کو عذاب دیتے نبی کو، ہے کہ نہیں قرآن میں؟ دیکھو آپ سورہ یونس آیت 15، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 73 74 75، دیکھو
लोग को थोड़ा मिलावट करके देते, खुशी आलिम लोग आपको दे रहे ना मिलावट कर, ले सकते, ले लो, कार ले लो लोन पे, ले सकते। बिजनेस में कब करना है, फैलाना है, बढ़ाना है बिजनेस, या चालू करना है बिजनेस, ले लो लोन। सूद ब्याज इंटरेस्ट हराम, जंग का ऐलान अल्लाह बोला अगर सूद लेन देन किए वो तो आलिम कैसा घुमाते, सूद खाना हराम है, यानी किसी को पैसा दिए और उस पर ब्याज ली वो हराम है, बाकी ले सकते दूसरे से और उसको खिला सकते हराम चीज तुम मत खाओ, यानी सूद पे पैसा देके मत खाओ, सूद ये बोलते हैं मत खाओ, ये हराम। और दूसरे को मतलब तुम लोन ले लो और वही सूद उसको खिलाओ, हराम ये है आलिम मुफ्ती, समझ रहे आप। लेना देना दोनों हराम है, गलत काम में ताउन मत करना। इधर हो सूरह मायदा देखो आप खोल के, गलत काम है ना बैंक में लेन देन जो चल रहा है, कारोबार सूद ब्याज गलत काम है ना, लोन सूद, तो गलत काम में ताउन मत करना लिखा है, मदद नहीं करना, तो आप तो मदद कर रहे हो। सूद ब्याज का वो लोग कारोबार खोल के बैठे हैं बैंक वाले, उस पर ही पूरा उनका है ना, पगार तनख्वाह बांटना और लेना देना कंपनी को, सूद ब्याज, चाहे कंपनी वाला डूब भी जाए तो गला लाओ, डूब गया तुम तो भी लाओ सूद, ऐसा माफ नहीं। तो ये सब आप अल्लाह की बात क्या नमाज रोजा करते हो, मैं बार बार बोलता हूँ आपको, नहीं मिलने वाला है। नमाज रोजा करे तो तकवाना, परहेजगारी, नमाज बेहयाई बुरी बात को रोकती, लिखा है ना, इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर, सूरह अनकबूत आयत 45। नमाज बुरी बात से रोकती, फाहिशात से रोकती, तो नमाज पढ़े तो सब रुकना। बुरी बात है ना, सूद लेना देना, किसी का जमीन हड़पना, किसी का पैसा हड़पना, रख लिए देते ही नहीं, जा जो करना है कर ले, है ना भाई, चल रहा है ना, नमाज पढ़ रहे, हज कर रहे, चोरी का हला जमीन हड़प करके, रिश्तेदारों का हक मार के, जायदाद में बहन बेटियों को नहीं देके हज कर रहे, हाजी सब धुल गए गुनाह, ऐसा नहीं धुलता। अली मुल्ला मुफ्ती के चक्कर में मत रहो, कुरान पढ़ो समझ में आएगा, ऐसा नहीं धुलता। इसका चोरी कर लिए तो हज कर लिए, चोरी कर लिए, ऐसा नहीं चलता। ये सब कहां से है, ये सब धोखा दे रहे आपको, घपले करो चीटिंग करो जन्नत है, ये लोग का ये बोलना है। घपले करो, हक मारो, चीटिंग करो, हज करो, बोले सब बेड़ा पार है, हज कर लिए धुल गया, और उसका जो लेके बैठे वो नहीं मिलेगा कुछ भी। नमाज पढ़ते रहो मिलेगा नहीं, रोजा रखते रहो मिलेगा कुछ नहीं। पैगंबरों को बोल दिया है कि तुमने अगर शिर्क किया तो सारा अमाल बर्बाद, तुम वो उधर शिर्क बोला या तुम कुफ्र कर रहे हो, कुफ्र का भी ठिकाना जहन्नुम, शिर्क का भी ठिकाना जहन्नुम। घड़े अलग अलग है, बस इतना ही फर्क है तो सबके लिए जहन्नुम। आयतों को बात को अल्लाह की उड़ा देना क्या है। इब्लीस ने शिर्क थोड़ी किया था, इब्लीस ईमान वाला था, नेक था, पहले उसका नाम इब्लीस था ना, उसका नाम ही इब्लीस था, फरिश्तों के साथ खड़ा था ऊपर आसमान पे, पहले नेकी था। अल्लाह की एक हुक्म नहीं माना, ऑर्डर, तो अल्लाह क्या बोला, तू हो गया काफिरों में, इनकार करने वालों में से हो गया। थोड़ी चर्च पूज रहा था, मूर्ति पूज रहा था कि अल्लाह बोल रहा है तू काफिर हो गया। समझे आप, मैं बताना आपको क्या चाह रहा हूं कि ईमान वाला ही है, नेकी है, लेकिन एक हुक्म नहीं माना अल्लाह का, तो इनकार करने वालों में से हो गया। शैतान टाइटल ले लिया उसको, शैतान ने एक टाइटल है, कब मैं गलत करूं तो मेरे को अल्लाह शैतान बोलेगा, आप गलत करेंगे तो आपका नाम कुछ भी आपको बोलेगा अल्लाह शैतान, एक कैरेक्टर का नाम है। बदमाशी करने वाले, अल्लाह की बात के खिलाफ अमल करने वाले को शैतान टाइटल मिलता है। आप लोग का जहन कुछ और बना हुआ है, अपने पे तो जाता ही नहीं है, समझ रहे, अपने आप पे झांकना पहले। मैं कोई आयत तो रद्द नहीं कर रहा, कोई अल्लाह का ऑर्डर तो नहीं रद्द कर रहा हूं मैं, समझे आप। सब बातें गौर करने की भाई, मैं एकदम प्योर कुरान की बात बोल रहा हूँ आपको, मिलावट नहीं कर रहा हूँ। खोल के आप देख लो कुरान, पैगंबरों को बोल रहा है सारा अमल तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। सूरह जुमर आयत 65 सारा अमल, नमाज रोजा हज नेक अमल पैगंबर को बनाया, वो भी रुतबा गया। अगर तुम शिर्क करे तो वो भी रुतबा तुम्हारा चलेगा। पैगंबरी भी गई, नमाज। आप लोग कौन सी दुनिया में हो, आप लोग अपने आप को
आली मुफ्ती के जहन से चल रहे, इसलिए आप सब जन्नती समझ रहे। कुफ्र, अल्लाह की बात रद्द, अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे, कुछ भी उलट पुलट कर रहे, जो अल्लाह मना फरमाया, तुम अल्लाह मना कर रहा है आप कर रहे हो, अल्लाह नहीं बोल रहा आप बोलते हाँ मैं कर रहा हूं। भरोसा, धोखा, बचा लेंगे, बख्शवा लेंगे, ये सब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी। आपको मैं बता रहा हूँ, करोगे तो मिलेगा। अच्छी बात है ना, मैं बता रहा हूँ, करोगे तो मिलेगा। भरोसा ही नहीं, किसी पर डिपेंड ही नहीं। अमल करो पाओगे, है ना। एग्जाम लिखोगे तो पास हो जाओगे, मैं बोल रहा हूँ आपको। लिखोगे, काम करोगे तो पास हो जाओगे। और दूसरे लोग आपको क्या बोल रहे हैं, मत लिखो एग्जाम, नहीं भी लिखे तो मैं पास करा दूंगा, आप पास हो जाओगे। ये धोखा नहीं दे रहा है। तो धोखे में रहने से अच्छा है काम करो ना, एग्जाम दो, पेपर दो, पास हो जाओगे। खुद करो मिलेगा, अमल नहीं करो मिलेगा, अमल मत करो, नहीं भी करे तो सब मिलने वाला ही, जन्नत पक्की, सर्टिफिकेट ये लोग दे दिया। सब गुमराही शैतानी बातें हैं सब, समझा। और सूरे अनाम भी खोल के देखिए आप, आयत नंबर 82 अनाम। जो लोग ईमान लाए, ईमान लाने के बाद अपने ईमान के अंदर शिर्क नहीं किए, ईमान के अंदर शिर्क नहीं किए, उन्हीं के लिए अमन है और वही लोग कामयाब है, वही लोग हिदायत प्राप्त है, वही लोग फला पाएंगे। जो लोग ईमान लाए, ईमान में शिर्क नहीं किए, अपने ईमान में किसी चीज को शिर्क नहीं किया, अकीदे में, ईमान में, अमल में शिर्क नहीं किया, उन्हीं के लिए अमन है, उन्हीं के लिए जन्नत है। सूरह अनाम आयत 82 देखो। और 84, सूरह अनाम की 84, 85, 86, 87, 88, 84, 85, 86, 87, 88, 5 आयत लाइन से पढ़ो। 82 के बाद में सूरह अनाम में, ये मेरे पैगंबर है, इसहाक, मूसा, ईसा, नूह, जकरिया, यूनुस, इब्राहिम, सब पैगंबरों के 18 पैगंबरों के नाम बोल रहा है। ये सब मेरे नेक बंदे हैं। चारों आयतें में अल्लाह इनको हिदायत दी, अल्लाह अपने बंदों में से जिससे चाहता है हिदायत पर चलाता है। सब ये मेरे 18 पैगंबर है, ऐसा नाम दिया 18 पैगंबर। आप देखो सूरह नाम। और आखिरी में 88 में क्या बोला, अगर ये हजरात, ये पैगंबर 18 ये भी शिर्क करते तो इनका सारा अमल हम बर्बाद कर देते। अकारत हबीतत आमालहुम, इनके अमाल हम अकारत कर दे, बर्बाद, और ये खसारा उठाने वालों में से हो जाते। सोचिए आप, जो बोले ना जुमर में नबी को कि हम तुमको ही बोल रहे हैं और पिछले पैगंबर को कि अगर शिर्क किए तो सारे अमाल तुम्हारे बर्बाद हो जाए और तुम खसारा उठाने वाले मुझसे हो जाएगा। पैगंबर लोग को बोल रहे हैं अल्लाह, नमाज रोजा हज करते थे कि नहीं, पैगंबर कर देते ना, फिर भी शिर्क किए तो सारे अमाल बर्बाद, पैगंबरी भी गई, जाओ। समझिए आप लोग ये मत सोचो नमाज रोजा हज करके जन्नत मिल जाएगी। नमाज बुरी बात से रोकती है, रोजा फर्ज इसलिए किया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बनो। मुत्तकी उसको बोलते हैं जो गुनाहों नहीं करता, गुनाहों से बचता, परहेज करता, गुनाहों नहीं करता, गुनाह से बचता, परहेज करता, उसको बोलते हैं मुत्तकी, परहेजगार। रोजे के ताल्लुक से भी मुत्तकी बनो, मतलब नेक बनो। नमाज के ताल्लुक से भी ये इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहिशा, ताकि तुम बुरी बात से बचो। और नमाज रोजा क्यों है, ताकि तुम गलत काम कुछ न करो। नमाज में आयतिक जो पढ़ते हैं उसमें यही सब पढ़ते ना, कभी पढ़ते डंडीन मारने वाले की खराबी नापतोल में, कभी ये पढ़ते, कभी बोलते कि हराम है शराब जुआ, ये भी पढ़ते हम नमाज में, कभी आयत पढ़ते ना, यहाँ ये बोलते, और कभी पढ़ते सूद हराम है, अल्लाह फरमा रहा है, ये भी पढ़ते ना आयत। कभी कभी तरावी में तो सब आयत पढ़ते, पूरा 300 कुरान, 300 पारा सब पढ़ते ना हम नमाज में, कि सब नहीं करना गलत है, अल्लाह ने बोला है शिर्क नहीं करना, हाँ मुझको पुकारो अल्लाह बोला है, सब पढ़ते हैं अरबी में। अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पुकारो, ये सब पढ़ते हैं हम लोग नमाज में। जो लोग अल्लाह के सिवा पुकारते, तुम्हारी पुकार नहीं सुनते, ये भी पढ़ते अरबी में, लेकिन हमको मालूम ही नहीं, अरबी आती नहीं, इसलिए हाँ हाँ करते रहते, हाथ बांधे रहते इमाम के पीछे। बाहर आते ही सब उलट पुलट काम,
जो अंदर बोले मस्जिद में नमाज में जो बोले उसी के खिलाफ बाहर आके काम। क्या है, आप लोग को पता ही नहीं ना, इसीलिए तर्जुमा पढ़ो बोलता हूँ मैं, इसीलिए बोला हूँ तर्जुमा पढ़ो। शिर्क बहुत किस्म की, शिर्क की अलग अलग किस्में बताए ना पिछले बयान, फिर बताता हूँ। सिफारिश करना शिर्क है, अल्लाह बोल रहा है, आप सोच रहे हैं मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोलता। मैं क्यों बोलूँ भाई, जहन्नुम में थोड़ी मेरे को जाना है, सब कुरान में लिखा, आप पढ़ो ना। आपके घर में क्या कुरान नहीं है तो लाओ, मिलती है वहाँ, जहाँ कुरान मिलती है लाओ। हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, आसामी, उड़िया, इंग्लिश, हर जबान में कुरान पढ़ो, अपनी जबान में तो मालूम पड़ेगा। सिफारिश करना शिर्क है, पैगंबर नहीं करे, आप लोग कर रहे हो। वसीला लेना शिर्क है, सूर्य यूनुस आयत 18 पिछले बयान में बताया, फिर खोल के देख लो। वली अल्लाह को मत पुकारो, सूर्य अल-अहकाफ आयत 5-6। उससे बढ़कर जालिम कौन जो ऐसे को पुकारे, जो उसको पुकार की खबर भी नहीं, और कयामत में के दिन वो तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे और तुम्हारी पुकार का इनकार कर देंगे, इबादत का इनकार कर देंगे। गाफिलून अरबी में लिखा, गाफिल हम तुम्हारी पुकार से गाफिल थे। सूरह अल-अहकाफ 5-6 देखो आप। पुकारना शिर्क है, सिफारिश वसीला शिर्क है। अल्लाह बोल रहा मुझको पुकारो, अल्लाह जिंदा है ना, सब भाषा जानता है और हमेशा सुनता है। वकाल रब्बकुम उदूनी अस्तजीब लकुम, सूरह मोमिन, गाफिर, दो नाम है सूरह, आयत नंबर 60। समझा शिर्क क्या क्या है, इसके उसके नाम का खाना शिर्क बोला ना पिछले बयान में। देखिए आप, इसके उसके नाम का खाना शिर्क, सिर्फ अल्लाह ही के नाम का आप खिला सकते, दूसरे के नाम का खिला ही नहीं सकते। सब बयान दिया हूँ पिछले बयान, सब देखिए कि कुरान की बातें मैंने दिया हूँ, बाहर से नहीं। मैं 95% कुरान की आयत से बात करता हूँ, सिर्फ 2-4% हदीस आपको सिर्फ देता हूँ, प्योर कम है हदीस, डुप्लीकेट ज्यादा है। तो प्योर हदीस कुरान से चेक करके अकॉर्डिंग टू कुरान है तो आपको सुनाता हूँ, समझा हदीस, वरना हदीस कुरान में ही जवाब है तो मैं काय को हदीस से जवाब दूँ आपको। अल्लाह ने जब जवाब दिया है हर सवाल का तो मैं जवाब दे रहा हूँ, अल्लाह दिया है कुरान में, बोलो बोला है लोगों तक, कुरान पर पहुंचाओ, समझा। बच्चों शिर्क से, शिर्क करने वाले के सारे अमाल बर्बाद, लिखा है पैगंबर के भी बर्बाद अगर करे तो। आप लोग तो नमाज रोजा, आज शिर्क मालूम ही नहीं है तो करेंगे क्या, सवाब समझ रहे आप लोग सवाब समझ, ऐसे बड़ा बोलते ना सवाब का काम है बोल के आपको गुमराह कर रहे हैं। अल्लाह ताला क्या क्या बोला कुरान में, 30 पारा पढ़ लो। जन्नत में जाना है तो ये 30 पूरा कुरान का नॉलेज उस पर चलना तो जन्नत है। नॉलेज अपनी जबान में हासिल करो, समझ जाओगे, समझा। बहुत अहम बात है ये, समझे। नबी ने बोले ना सारे फिरके मेरी उम्मत के जहन्नुमी, 73 होंगे फिरके, सब जहन्नुमी सिवाय के। तो सारे फिरके नमाज रोजा हज कर रहे हैं ना, कलमा पड़े हुए सारे फिरके तो है, दिख रहे आपके सामने। कौन जाएगा, जो कुरान के मुताबिक चलेगा, जो कुरान में लिखा है उसके मुताबिक, आली मुफ्ती की बात नहीं, सिर्फ अल्लाह की बात, कुरान अल्लाह की बात है, कुरान अल्लाह की बात पे चलो जन्नत। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।